Let's start with question number 9. Page 79 पर चलो. We are starting with question number 9. Take up your pencil. Let's start doing the bifurcation. Parthiv and Priya are the partners of a partnership firm. From the trial balance dated 31/3/2017 and adjustment, prepare final accounts. पहला, drawings of Parthiv and Priya. लिखो वहां पर PC, partners capital. The net cost of purchase, trading account. Then stock of goods on 31/3/17. It's a closing stock, asset. Receivables, asset. Then wages and salary. देखो wage पहले है, बाद में salary है, मतलब it will go to trading account. Then trading expense. Trading expense. P&L. Building. Building. Furniture fittings. Asset. Office equipments. Asset. Then packing material का stock. Packing material stock. Asset. And then cash balance will also go to. Cash balance will go to asset. Sure. Then credit balance जरा check करेंगे. Credit balance. Capital account of Parthiv and Priya. Partners capital. Then sales. Sales. Trading account. Then payables. Payables. Goods distribute as sample. Trading. And a bank overdraft. Bank overdraft. जरा चेक करो, वेरीफाई करो क्या डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल मैच हो रहा है. डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का टोटल क्या मैच हो रहा है, जरा चेक करो. इज इट देयर? नाउ एडजस्टमेंट्स पे टिक करो, कैपिटल अकाउंट्स को टिक करो. एडजस्टमेंट्स में कैपिटल अकाउंट्स को टिक करेंगे. देन ड्राइंग्स को टिक करो. देन सेल्स को टिक करेंगे. रिसीवेबल्स को टिक करो. फर्नीचर को टिक करो. बस इतने को टिक करना रहेगा. इतने को टिक करना रहेगा. अरे भाई वेजेस में कुछ नहीं है, मैं बताता हूं तुमको. चलो फॉर्मेट बनाना शुरू करेंगे. चलो शाबाश. पहला, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पार्थिव एंड प्रिया फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2017. Particulars. This is debit amount. Particulars amount credit. अब बेटा जगह नहीं है ना, तो इसके नीचे मैं P&L अप्रोप्रिएशन बना दे रहा हूं. देन वहां पर फुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. बेटा स्टार्ट मेकिंग द फॉर्मेट फास्ट. मेरे को उसमें टाइम पास बिल्कुल नहीं चाहिए. स्टार्ट मेकिंग द फॉर्मेट फास्ट. उसमें मेरे को टाइम पास नहीं चाहिए. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. देन नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पार्थिव एंड प्रिया. Profit and loss account of Parthiv and Priya. Debit. Particulars. Amount. Particulars. Amount.
Now this is credit. Okay. Then we make balance sheet as on 31/3/17. Balance sheet as on 31/3/17. Liabilities amount, asset amount, અને છેલ્લે હું બનાવું છું પાર્ટનર્સ કેપિટલ. પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ date, particulars, Parthiv, Priya, date, particulars, Parthiv and Priya. This is debit side and this is credit side. बेटा अगर सब लोग आ गए हैं तो दिस इज फॉर देयर इंफॉर्मेशन कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल बी हैविंग अवर लेक्चर फ्रॉम 2:45 से 3:45 and get your statistics also. बेटा स्टार्ट करूं? बेटा स्टार्ट करूं? बेटा स्टार्ट करूं? एवरीबॉडी अरे shall we start? बोलो ना यार. Let's begin. First, drawings of Parthiv and Priya. अब उसके लिए नीचे जरा एडजस्टमेंट एक बार ध्यान से पढ़ो. Parthiv had withdrawn 400 at the end of each month. तो देखो 400 into 12 करें तो ऊपर पार्थिव का 4800 टोटल बैठ जाता है. अरे प्रिया ने कब ड्राइंग्स करे हैं? 1/10 को. सो पार्टनर्स कैपिटल में पहले लिखो 1/10. यहां पर ड्राइंग्स इन द कॉलम ऑफ प्रिया 3200. इन द कॉलम ऑफ प्रिया 3200. और पार्थिव ने तो देखो 400 हर महीने के एंड में उसने किया. तो उसकी डेट डालो 31/3 जो लास्ट डेट है ड्राइंग्स. और टोटल कितना बैठता है? 4800.
So we write the total 4800. We write the total 4800. Sure? Sure. The net cost of purchase कहाँ जाएगा? Net cost of purchase. Net cost of purchase. Write it in the inner column. 1,06,000. Write it in the inner column. Net cost of purchase 1,06,000. We write that in the inner column. Then we have stock of goods on 31/3. So stock of goods on 31/3, that is 28,000. Then we have receivables. कितना बेटा amount of receivables? 48,000. That we write it in the inner column. 48,000. Then next क्या है? ओम को बुलाना ना बुरा होते। ओम बाय। बेटा टाइम से प्लीज आया करो ना, ये सब तुम डिस्टर्ब करते रहते हो यार। फिर मैं कुछ बोल देता हूँ तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा यार। जरा बुद्धि तो चलाओ, हो क्या रहा है यहाँ, चल क्या रहा है। भाई थोड़ा अंदर उसको जगह दे, नहीं तो वो तो गिरा देगा इसको। बुद्धि नहीं है, जड़ बुद्धि है वो। रिसीवेबल्स हमने लिखे 48,000. Then wages and salary. Wages and salary. But don't worry, it doesn't have any adjustment. बिंदास आउटर कॉलम में लिखो, हम एडजस्टमेंट पढ़ के फिर देख लेंगे, तुम टेंशन ना लो। Then trading expense we have. Trading expense. How much is my amount of trading expense? 16,000. Trading expense we have 16,000. Then in building, do we have any adjustment? Building? So we write that amount 50,000 directly in the outer column. Then furniture and fittings we have 10,000. Furniture and fittings we have 10,000. We have adjustment in that inner column. Then office equipment. Any adjustment to that office equipment? No. That is 4,000 office equipment. Then packing material का stock. Packing material का stock 4,000. Then cash balance अपने को दिया है 2,000. Cash balance we have 2,000. बेटा डेबिट साइड आइटम ऑल पोस्टेड. डेबिट साइड वाली आइटम सारी पोस्टिंग हो गई. कैन वी गो ऑन टू द क्रेडिट साइड? पहला कैपिटल अकाउंट, तो 1/4/16 ही डेट लगेगी. बाय ओपनिंग बैलेंस 1/4/16 की ही डेट लगेगी. 24,000 यानी 16,000. 24,000 and 16,000. Then sales 2 lakh. We write that in the inner column. Payables we have 30,000 that will be going in the outer column. No adjustments to that.
Then goods distributed as samples. क्या से ये परचेज में से मैं माइनस कर दूं, और इफ यू वांट टू शो इट ऑन द क्रेडिट साइड देन आल्सो इट्स फाइन, ट्रेडिंग में ही जाएगा, लेकिन परचेज में से माइनस करें वो ज्यादा बेटर है. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, कितनी अमाउंट है? 2000. सो 1,04,000 हम लिख देंगे इन द आउटर कॉलम, 1,04,000. द लास्ट क्रेडिट साइड वाली आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट. हाउ मच इज माय अमाउंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट? 14,000. द अमाउंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट इज 14,000. Amount of bank overdraft is 14,000. Any doubt? Any doubt? बेटा डेबिट साइड क्रेडिट साइड सारी पोस्टिंग मैंने कर दी है. Can we go on to the adjustment? Can we go on to the adjustment? So but I have changed my pen. Black and red is there with me now. So you also do the needfuls. पहलू वालों तो बहुत इजी है. Provide क्या लिखा है? 8% interest on capital. What do we need to do? Provide 8%. Raise your hand. Interest on capital जाएगा कहाँ? Raise your hand. अमाउंट हम फाइंड आउट करते, लेकिन उसकी दो इफेक्ट कहां जाती थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. रशिका, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में. अच्छा, रेट कितना बोले हैं? रेट कितना बोले हैं? सो गिव द हेडिंग वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of interest on capital. Working note number 1, calculation of interest on capital. अब देखो दोनों ही पार्टनर कब लेके आए हैं? 1/4/16 को. मतलब हमको इंटरेस्ट गिनना है फॉर होल ईयर. सो पार्थिव का अगर हम कैलकुलेट करें 24,000 का 8%, राइट? सो इट्स 1920. અને બેટા પ્રિયાનું કેટલું છે? 16,000 ના 8%. 1280. It's 1280. ओके. सो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जैसा इन्होंने इफेक्ट कहीं कहा जाएगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड. सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा पार्थिव का कितना? 1920 एंड प्रिया 1280. पार्थिव इज 1920 અને પેલું 1280. बेटा सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी? सेकंड इफेक्ट सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1920 અને 1280. 1920 અને 1280. Any doubt? Any doubt? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. फिर ड्राइंग्स के बारे में देखो क्या बोला है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग्स का? 12%. नाउ 12% जो है हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन जरा यहां ध्यान, प्रिया ने ड्राइंग्स कब करे? 1/10 को. तो उसको इंटरेस्ट कब से गिनने का? 1/10. तो जरा गिनो कितने महीने होते हैं 1/10 है? तो
October, November, December. Give the heading. Working note number 2. Working note number 2. Calculation of interest on drawings. Calculation of interest on drawings. अब यहां ध्यान, प्रिया ने ड्राइंग्स करे हैं 1, 10, 16 को. सो 1, 10, 16 से 31, 3, 17. That is for a period of how many months? That is for a period of how many months? 6 months. So 3200 into what's the rate? 12% for how many months? 6 months. 3200 का 12% for 6 months, it comes to 192. बेटा पार्थिव का अगर तुम्हें याद हो अपना पहला चैप्टर, पार्थिव का अगर तुम्हें पहला चैप्टर याद हो, 400 रुपया उस बंदे ने ड्राइंग्स करे हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ. तो क्या करने का अपने को फॉर्मूला क्या था? रेज योर हैंड. फॉर्मूला ऐसा भीड़ में नहीं, फॉर्मूला बताओ. सर फर्स्ट चैप्टर याद ही नहीं है, फर्स्ट चैप्टर याद नहीं है. हाँ देव. Amount of drawings into rate of interest into 66/12. Amount of drawings, that is monthly amount of drawings into rate of interest into 66/12. तो चलो मारो. तो यहाँ पार्थिव के यहाँ पर लिखो 400 rupees withdrawn at the end of the month. 400 rupees withdrawn at the end of the month. So interest on drawings का फॉर्मूला क्या निकलेगा? Monthly amount into rate of interest into 66/12. Now मेरी मंथली अमाउंट कितनी है? 400 रुपया. रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% into 66/12. कितना आ रहा है? 264. और उसका आया था 192. बेटा raise your hand. Where will be the two effects going? Raise your hand. Interest on drawings. Sef. PNL के PNL appropriation. PNL appropriation के अरे बीजी इफेक्ट. बेटा बीजी इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड लिखा जाए. चलो बहुत बढ़िया. बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, by interest on drawings, Parthiv and Priya. पार्थिव के बेटा कितने हैं? पार्थिव के 264 and Priya it's 192. और यहां पर हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 264 અને 192. 264 અને 192. बेटा कोई डाउट? 264 અને 192 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. बेटा सेकेंड एडजस्टमेंट आई एम डूइंग विद द रेड पेन. जरा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा. क्या है इंपॉर्टेंट उसमें पढ़ते हैं. क्रेडिट सेल हमने करा 10,000 का. जरा ध्यान से पढ़ो. व्हाट हैव वी डन? क्रेडिट सेल ऑफ, बट इट इज नॉट. सामान उधार पर बेच दिया है मगर उसको हमने अभी तक रिकॉर्ड अच्छा रिकॉर्ड अगर नहीं किया है तो क्या करूं?
अगर हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा है तो क्या करें? रिकॉर्ड कर दो। कहां करें हम रिकॉर्ड? क्रेडिट में बेचा है, सेल्स में क्या करें? सेल्स में क्या करें? श्योर, प्लस करना पड़ेगा। अब समझो, अगर उधार पर पैसे, जो हमको सामान बेचा है तो अपने को पैसे मिलेंगे कि अपने को देने के? उधार पर सामान बेचा है तो कैन आई से द नेक्स्ट इफेक्ट विल गो इन माय डेटर्स रिसीवेबल्स, क्योंकि हमको उनसे पैसे लिखो। चलो, प्लस क्रेडिट का सेल्स 10,000। बेटा राइट द अमाउंट इन द इनर कॉलम ओनली। अने रिसीवेबल में हम प्लस कर देंगे क्रेडिट सेल 10,000, 58,000 राइट इट इन द इनर कॉलम ओनली, इनर कॉलम। अरे उसी में जरा देखो, ऐसा कुछ लिखा है कि हमने क्या करा, ये जो सेल्स का हमने टोटल किया है उसको 2000 से क्या बता दिया, मतलब ओवरकास्ट का मतलब क्या, वी हैव शोन मोर टोटल। अब जरा बेटा, जरा 11th स्टैंडर्ड, गो बैक टू द 11th स्टैंडर्ड, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर हमने ज्यादा बता दिया है तो अपने रेक्टिफाई कैसे करते थे? टेक इट टू द ने। अगर मैं उसकी जर्नल एंट्री लिखूं, क्या लिखूं? तो सेल्स को हम करते हैं क्रेडिट, सेल्स को हम क्या करते हैं? सो इफ आई टेक इट टू द ऑपोजिट साइड, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। अब क्रेडिट किसको करूं? ओवरकास्ट को। क्रेडिट किसको करूं? क्यों सस्पेंस? कहना से अगर सेल्स एक ज खाता में भूल करी छे and I don't have any other account to debit or credit, then it should be transferred to which account? So give the heading working note number 3. Working note number 3. Rectification entry of rectification entry of overcast of sales, rectification entry of overcast of sales। तो एंट्री लिखो, क्या निकलेगी एंट्री? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट and the amount is how much? 2000. Sales account debit to suspense account and amount will be how much? 2000. Amount beta will be how much? Sure. अब देखो, मेरे को ये एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट देनी है, तो सेल्स में टोटल ज्यादा दिखा दिया तो यहां से वो क्या करूंगा? नहीं, मेरे को सस्पेंस भी कहीं पर यहां पर बताने का बैलेंस शीट में या कहीं पर, लेकिन हम उसको अभी पेंडिंग रखते हैं। वी गो टिल द लास्ट एडजस्टमेंट, અને લાસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ સુધી આ સસ્પેન્સ નું હજી કઈ બીજો ઓલ્ટરનેટિવ ના મળ્યો તો પછી મારે અહીંયા કસે બેલેન્સ શીટ માં એને લખવી પડશે। लेकिन अगर लास्ट एडजस्टमेंट से जाते जाते उसको खत्म करके अपने कुछ सस्पेंस का कुछ और जुगाड़ हो गया तो फिर उसको यहाँ पर दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी लेकिन वो सेल्स में से बता दो, चलो लेस कर दो ओवर द कास्ट 2000। सो अमाउंट कितनी बैठेगी? 2,08,000। ओवरकास्ट हम करेंगे तो अमाउंट कितनी बैठेगी? 2,08,000। Any doubt? Any doubt? बेटा थर्ड वाला
एडजस्टमेंट खुद से करो, बहुत सिंपल है। बेटा थर्ड वाला, राइट ऑफ एडिशनल बैड डेट्स ऑफ ₹2000 एंड प्रोवाइड 5% bad debt reserve. Now additional bad debts का मतलब क्या हो गया? क्या वैसे हमारे जो डेटर्स थे 58,000, हमारे जो डेटर्स हैं कितने, तो उसमें से अभी हमको 2,000 रुपया अब अपने को नहीं मिलेगा। सो बैड डेट यहां से क्या करूं? सो करो चलो, बैड डेट एज पर एडजस्टमेंट 2000 माइनस, तो 56,000 वी राइट इट इन द इनर कॉलम। बेटा 56,000 वी राइट इट इन द इनर कॉलम। अरे पची उस पे बीडीआर कितना बनाने का है जरा देखो तो, हाउ मच इज द रेट ऑफ बीडीआर? कितना है? 5%। सो 56,000 का हमें बीडीआर बनाना है, मतलब इतने मेरे डेटर डाउटफुल हैं कि जो 56,000 है उसमें अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि 5% लोग मेरा भविष्य में बैड डेट्स करने वाले हैं, लेकिन हम उसकी तैयारी करंट ईयर से ही कर दे रहे हैं। सो बीडीआर एज पर एडजस्टमेंट व्हाट्स द रेट? सो 56,000 का 5% 2800 माइनस करके 53,200, इट्स 53। बेटा ये बैड डेट्स की दूसरी इफेक्ट कहां जाती है? बेटा दूसरी इफेक्ट बताओ। क्या से पीएनएल के डेबिट साइड हमको TAAT का टेबल बनाने का, बना लो। क्या से बैड डेट एज पर ट्रायल बैलेंस कहीं अप्यूत न थी। बैड डेट एज पर एडजस्टमेंट कितना है? 2000 प्लस बीडीआर एज पर एडजस्टमेंट कितना है? 2800 लेस बीडीआर एज पर ट्रायल बैलेंस इज 0, क्योंकि वो भी अपने को सम में दिया नहीं था। वो भी अपने को सम में दिया नहीं था, तो वो भी नील है, तो 4800 विल गो इन द आउटर कॉलम। बहुत बढ़िया, एडजस्टमेंट वो हो गया। फोर्थ वाला पढ़ेंगे, चलो फोर्थ। क्या ऐसे बहुत इजी चीज, जरा फोर्थ वाला पढ़ो इंग्लिश में, इंग्लिश में बेटा फोर्थ वाला जरा पढ़ेंगे इंग्लिश में। क्या से फर्नीचर अपना क्या हो गया है? ऑब्सोलीट बोले तो आउटडेटेड, और इट्स नाउ यूजलेस। तो 10,000 में से 4,000 का फर्नीचर बेटा यूजलेस हो चुका है। जस्ट लाइक यू, पहले वो तो समझो। इट इज ऑब्सोलीट जस्ट लाइक योर माइंड, द यूजलेस। तो फर्नीचर में से क्या करें हम? क्यों माइनस? क्योंकि आपको कोई बिजनेस में काम का नहीं है। अच्छा सेकेंड इफेक्ट इसकी कहां जानी है? सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट पीएनएल में डेबिट साइड। क्यों? क्या है? इट्स अवर लॉस, इट्स अवर। सो यहां से माइनस करो लेस ऑब्सोलीट फर्नीचर 4,000। So outer column it will be 6,000. And here लखिए 2 loss on obsolete furniture 4,000 to loss on obsolete furniture 4,000। बेटा श्योर्स है? श्योर्स है? बहुत बढ़िया बेटा। विच इज द नेक्स्ट वन नाउ?
इंग्लिश में पहले वो पढ़ो तो सही, क्या इसका मतलब तुम्हें समझ में आता है इंग्लिश में। कोर्ट हैज फाइनलाइज्ड अ क्लेम ऑफ हाउ मच? कोर्ट हैज फाइनलाइज्ड अ क्लेम 4000। किसके लिए? किसके लिए? फॉर नॉट गिविंग द, फॉर नॉट गिविंग व्हाट बेटा, बोलो नहीं यार। फॉर नॉट गिविंग गुड्स, नॉट गिविंग गुड्स टू द, मतलब हमने अपने कस्टमर को क्या करा? हमने अपने कस्टमर को क्या करा? कहने से हमने उसको उसके गुड्स टाइम पर पहुंचाए? टाइम पर पहुंचाए। उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? कहना से कोर्ट में जाके उस कस्टमर ने अपने खिलाफ केस कर दिया और वो जीत भी गया, क्योंकि उनको पता ही था अपने तो नल्ले, अपने टाइम टू टाइम नहीं सप्लाई करा है। सो कोर्ट वालों ने अपने को क्या ऑर्डर किया कि अब 4000 रुपया तुमको पेनल्टी भरना पड़ेगा। किसको? कहना से 4000 रुपीज पेनल्टी भरनी पड़ेगी। किसको? टू दैट कस्टमर। तो 4000 की जो ये पेनल्टी भरनी है उसका क्या करूं? बेटा पेनल्टी भरनी है, क्या करूं? कहना से प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड रेड बेटा, रेड रेड रेड। पेनल्टी पेबल टू कस्टमर 4000 पेनल्टी पेबल टू कस्टमर। कोर्ट वाले ने अपने को ऑर्डर दिया भाई 4000 तो भरवा पड़ से। अभी जरा बुद्धि चलाओ, 4000 भरवा पड़ से। इट इज पेबल, रिसीवेबल होता तो सो लिख दो लायबिलिटी में पेनल्टी पेबल 4000, पेनल्टी पेबल 4000, एंड बेटा लास्ट 6th वाला भी एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से पढ़ो। 6th वाला एडजस्टमेंट भी ध्यान से पढ़ो। क्या बोल रहे हैं, जरा रीड इट प्रॉपरली। क्या बोल रहे हैं? आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं कितने? आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं कितने? नाउ दैट आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000 जो है वो मैंने ये वेजेस एंड सैलरी में तो लिख लिए। देखो ऐसा लिखा है, देखो ना यार। तो वेजेस में मैंने लिख दिए हैं, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग वेजेस की दूसरी इफेक्ट जानी चाहिए थी, कहां जानी चाहिए थी दूसरी इफेक्ट? वो मैं लिखना भूल गया हूं। The outstanding wages which should go to wages and salary, and the second effect should go to which side? तो यहां पर तो दे दिया है, लेकिन लायबिलिटी में अभी तक मैं लिखना भूल गया हूं। तो दिस इज एन एरर ऑफ ओमिशन। હવે લાયબિલિટી માં લખવા તમે ભૂલી ગયા છો તો શું કરો? લખી દો। પણ લાયબિલિટી માં લખો એટલે લાયબિલિટી બોલે તો કઈ ઇફેક્ટ આપવાની છે? लायबिलिटी अगर है तो कौन सी इफेक्ट देनी है? क्रेडिट इफेक्ट देनी है। कौन सी इफेक्ट देनी है? वी नीड टू गिव जर्नल एंट्री लिखते हैं। चलो इसकी जर्नल एंट्री लिखते हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर recording, rectification entry for recording outstanding wages, rectification entry for recording outstanding wages। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखना कहां मैं भूल गया हूं, मतलब मुझे उसे क्या करना है? मुझे उसे क्या करना है? डेबिट किसे करूं? कुछ और दिख ही नहीं रहा है। डेबिट किसे करूं? लिखा जाए एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस
suspense account debit to outstanding wages, बराबर है। तो पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस में लायबिलिटी में लिख देता हूं, चलो आउटस्टैंडिंग वेजेस में पहले लायबिलिटी में लिख देता हूं 2000, ठीक है? अरे ठीक है। अरे अब जरा देखो, ये पहले भी एक सस्पेंस वाले की मैंने इफेक्ट नहीं दी थी। मैंने क्या बोला? वेट करो। क्या बोला? પછી આ નીચે પણ સસ્પેન્સ આવ્યું છે ડેબિટ માં, અહીં હું છે? અહીં ડેબિટ માં છે, અહીં ક્રેડિટ માં છે, તો can I say it will be eliminated? It will be, કેમ કે it is with the same amount. Coincidentally it is with the and if you remember हमने 11th स्टैंडर्ड में टाइप्स ऑफ एरर पढ़े थे, अगर तुम्हें याद हो तो उसमें एक एरर होता था कॉम्पनसेटिंग एरर्स। उसमें एक एरर होता था क्या? मतलब हमने उसमें ऐसा देखा था कि एक अलग एरर हुआ है डेबिट में और एक अलग एरर हुआ है, लेकिन दोनों की अमाउंट सेम हो जा रही थी, तो इसलिए हमने वो एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पर भी दैट वी हैव एलिमिनेटेड। એટલે હવે સસ્પેન્સ બતાડવાની જરૂર, કશે પણ બેલેન્સ શીટ માં સસ્પેન્સ બતાડવાની જરૂર। ધ્યાનથી જો, કોઈ હિડન એડજસ્ટમેન્ટ છે કે પછી ટોટલિંગ ચાલુ કરીએ? કોઈ હિડન એડજસ્ટમેન્ટ છે કે ટોટલિંગ ચાલુ કરીએ? टोटलिंग चालू कर दो सर। कॉपी करने वाला चलो बेटा मजा लूट लो, मजा लूट लो। बेटा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है यार, बिना देखे बोल दे रहा हूँ। 2,08,000 द सेम टोटल आई विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड, અને उसमें से 1,04,000 અને 10,000 मतलब 1,14,000 माइनस करो। 94,000 जो आए वो क्या है? क्या ना से दैट्स माय ग्रॉस प्रॉफिट व्हिच आई ट्रांसफर टू P&L account, which I would transfer to P&L account 94,000 बेटा दूसरी इफेक्ट कहां जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट की? P&L में चली जाएगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट 94,000 बाय ग्रॉस प्रॉफिट 94,000। बेटा वापस इट इज नीडलेस टू से કે ડેબિટ અને ક્રેડિટ ના કમ્પેરિઝન માં ક્રેડિટ સાઇડ નું ટોટલ વધારે લાગે છે। સો 94,000 એમાંથી આ માઈનસ કરી દો। 94,000 માંથી 65,000 कितना? 200। इट्स 65,200 माइनस करके बेटा ये जो आया वो क्या आया? जो मैं ट्रांसफर करूंगा कहां? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। 65,200 will transfer in P&L appropriation account। So बेटा P&L appropriation में लिख दो बाय नेट प्रॉफिट 65,200 અને વાપસ બેટા ક્રેડિટ સાइड का टोटल ज्यादा है 65,656 અને એમાંથી આપણે માઈનસ કરો 62456। This is my divisible profit 62456 is my divisible profit। अच्छा जरा रेशियो कोई सम में दिया है?
सो रेशियो नहीं है तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 1:1 इक्वली 31228 31228 बेटा 31228 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लिख देंगे बाय डिविजिबल प्रॉफिट 31228 31228 बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल कर दो 31228 31228 57148 અને પ્રિયા 48508 बेटा कॉपी करने वालों मजा आ रहा है कॉपी करने वालों को 57148 અને 48508 माइनस करो बेटा 52084 45116 बेटा ये जो आया वो है मेरा क्लोजिंग बैलेंस 52084 અને 45116 અને ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मैं कैपिटल में लिख दूंगा पार्थिव एंड प्रिया 52084 45116 बेटा मजा लूट लूट के ले लो कैलसी मत निकालना खुद से टैली मत करना घर जाके 3-4 आइटम मिसिंग निकलेगी फिर टैली करना ठीक है कितना रहा टोटल ऑफ बैलेंस शीट टोटल 147200 can I say that's my total of Mission Impossible? That's my total of Mission Impossible.